So today our topic is red blood cells. Okay, so first we will see introduction. Red blood cells are non-nucleated form element in blood. Non-nucleated means nucleus is absent in red blood cells. Okay, also known as erythrocytes. Red color of red blood cell is due to presence of coloring pigment called hemoglobin. Red color क्यों होता है red blood cell का? So presence of coloring pigment called hemoglobin. Okay, larger compared to other two blood cells. So which are other two blood cells? So platelet and white blood cells. Okay, so now we'll see normal value. Red blood cells count ranges between 4 to 5.5 million per cubic mm of blood. Okay, in adult males 5 million and in adult females 4.5 million per cubic mm of blood. Okay, clear? Normal value. Okay, so now we'll see morphology of red blood cells. So first we will see normal shape. Normally disc shaped and biconcave. So disc shape and biconcave. Dumbbell shape. So we can see here it is dumbbell shaped. Okay. Central portion is thinner. Okay, clear? Central portion is thinner and periphery is thicker. Okay, so in this we will see center portion is thinner and periphery is thicker. Biconcave contour of red blood cells has some mechanical and functional advantage. So advantage क्या है अब वो देखेंगे इस शेप का. ओके, सो फर्स्ट helps in equal and rapid diffusion of oxygen and other substance into interior of cell. Okay, so first advantage क्या है? Helps in equal and rapid diffusion of oxygen. So blood में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? So hemoglobin. Okay, large surface area is provided for absorption or removal of different substance. First क्या था? ऑक्सीजन डिफ्यूज के लिए हेल्प करेगा. सेकंड क्या है? सो एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. मिनिमल टेंशन इज ऑफर्ड ऑन मेम्ब्रेन व्हेन वॉल्यूम ऑफ सेल अटर्स. ओके, सो पेरिफेरी इज थिक, सो मिनिमल टेंशन इज ऑफर्ड ऑन मेम्ब्रेन व्हेन वॉल्यूम ऑफ सेल अटर्स. ओके, while passing through minute capillaries, red blood cell squeezes through capillaries very easily without getting damaged. Okay, so क्यों? तो उसकी मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बिकॉज ऑफ बायकॉन्केव शेप वो इजीली स्क्वीज होके कैपिलरी में निकल सकते हैं. ओके, सो नाउ विल सी नॉर्मल साइज. सो डायमीटर 7.2 म्यू, थिकनेस एट पेरीफेरी इट्स 2.2 म्यू thicker and in center it's thinner with 1 mu only. Okay, difference in thickness is because of biconcave shape. We already seen that. Okay, surface area is 120 square mu, volume 85 to 90 mu cubic mu. Okay, so normal structure we already seen it is non-nucleated. Only mammal which has nucleated red blood cell is camel. Okay, because of absence of nucleus, DNA absent. Okay, other organelles such as mitochondria and Golgi apparatus also absent in red blood cell. So because of absence of mitochondria, energy is produced from glycolytic process. Okay, so माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो कौन से प्रोसीजर से होगा? सो ग्लाइकोलाइटिक. ओके, सो रेड ब्लड सेल्स डज नॉट हैव इंसुलिन रिसेप्टर एंड सो ग्लूकोज अपटेक बाय दिस सेल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन. क्लियर? नाउ विल सी रेड ब्लड सेल हैज अ special type of cytoskeleton which is made of
actin and spectrin. So red blood cell has a special type of cytoskeleton which is made up of actin and spectrin. Absence of spectrin result in hereditary spherocytosis. Okay, so absence of spectrin. In this, cell is deformed, loses its biconcave shape and becomes globular. तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस. क्लियर? सो इसमें कैसा? So now we'll see properties of red blood cells. First is Rowlux formation. So what is Rowlux formation? When blood is taken out of blood vessel, red blood cells pile up one above another like pile of coins. जब हम ब्लड निकालेंगे ब्लड वेसल में से तो रेड ब्लड सेल कैसे पाइल अप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, लाइक पाइल ऑफ कॉइन्स. उसको हम क्या बोलेंगे? Rowlux formation. So clear? It is accelerated by plasma proteins. कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स? So globulin and fibrinogen. So ये हमने देखी फर्स्ट प्रॉपर्टी Rowlux formation. ओके, सेकंड देखेंगे हम specific gravity. So what is specific gravity of red blood cells? So 1.0922 to 1.101. Okay. Third is packed cell volumes, also called as PCV. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम CBC रिपोर्ट देखते हैं तो ये सब वैल्यू हमको पता होना चाहिए कि क्या इंडिकेट करती है. सो proportion of blood occupied by red blood cells expressed in percentage. So proportion of blood occupied by red blood cells expressed in percentage. Clear? Also called hematocrit value. Okay. Fourth is suspension stability. Means during circulation red blood cells remain suspended uniformly in blood. Okay, equally distribute होते हैं in blood. Okay, so उसको हम क्या बोलेंगे? suspension stability. अब लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट 120 days. ओके, सो लाइफ स्पैन कितनी है? 120. आफ्टर लाइफ टाइम ओल्ड रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय इन आरई सिस्टम. आरई सिस्टम का अलग से एक चैप्टर होगा, उसमें पूरी प्रोसेस होगी. ओके, सो फेड ऑफ रेड ब्लड सेल्स. सो कैसे डिस्ट्रक्शन होता है अभी हम वो देखेंगे. यंगर रेड ब्लड सेल कैन पास थ्रू कैपिलर ईजीली. ओके, छोटी छोटी कैपिलरीज में से भी बहुत ईजीली पास कर जाएंगे. हाउएवर बिकॉज ऑफ फ्रेजाइल नेचर ऑफ ओल्डर रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे कैसे था? ईजीली पास हो जा रहे थे. अब ओल्ड जो जिनकी लाइफ स्पैन 120 डेज की कंप्लीट हो चुकी होगी. हाउएवर बिकॉज ऑफ फ्रेजाइल नेचर ऑफ older red blood cells destroy while trying to squeeze through capillaries. सिंपल. अब जो ओल्डर है तो वो फ्रेजाइल है, तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज से पास होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. क्लियर? डिस्ट्रक्शन अकर मेनली इन कैपिलरीज ऑफ रेड पल्प ऑफ स्प्लिन. वाई? सो अब देखेंगे क्यों स्प्लिन में ही. बिकॉज ऑफ डायामीटर ऑफ स्प्लेनिक कैपिलरीज इज वेरी स्मॉल. बहुत स्मॉल है डायमीटर. ओके, सो रेड ब्लड सेल पास होते डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो फ्रेजाइल नेचर के होंगे. फ्रेजाइल नेचर के कौन होंगे? तो ओल्ड. ओके, सो स्प्लेन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स. क्लियर? सो destroyed red blood cells are fragmented and hemoglobin is released from fragmented part. ऐसे ऐसे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन पे फ्रैगमेंट हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड फ्रॉम फ्रैगमेंटेड पार्ट. इमीडिएटली फैगोसाइटेड बाय मैक्रोफेजेस ऑफ बॉडी पर्टिकुलरली इन लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो. फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सो जैसे ये हीमोग्लोबिन है, मैक्रोफेज आए और इसको ऐसे पूरा फैगोसाइट कर दिया. ओके, सो अब हम देखेंगे रिलीज के बाद. सो
डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, इन स्प्लीन. ओके. रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, तो फर्स्ट हीमोग्लोबिन 3 पार्ट में डिवाइड होगा. सो आयन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन. आयन प्लस एपोफेरिटिन. ओके. देन इट कन्वर्टेड टू फेरिटिन, देन स्टोर्ड एंड रिफ्यूज. तो इनकी साइकिल, आयन की साइकिल ऐसे चलती रहेगी. ओके. फर्स्ट आयन प्लस एपोफेरिटिन, फेरिटिन में कन्वर्ट होगा, देन स्टोर. तो अभी पूछे कोई तो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, तो फेरिटिन. ओके. ग्लोबिन का क्या होगा, प्रोटीन, वो क्या है, प्रोटीन. सो प्रोटीन पुल, स्टोर्ड एंड रिफ्यूज्ड. पोरफायरिन कन्वर्टेड इनटू bilirubin and excreted through bile. Clear destruction of red blood cells in spleen. So release of hemoglobin in 3 parts, iron, globin and porphyrin. ये हो जाएंगे excrete. Simple. So now we'll see functions of red blood cells. So first is transport of oxygen from lungs to tissue. Okay. So mainly transport of oxygen done by hemoglobin. Hemoglobin in red blood cells combine with oxygen to form oxyhemoglobin. In this form, about 97% of oxygen transported in blood. So first function is transportation of oxygen from lungs to tissues, all body tissues. Okay. Hemoglobin in red blood cell combine with oxygen to form oxyhemoglobin. In this form, about 97% of oxygen transported in blood. Second is transport of carbon dioxide from tissues to lungs. Okay. In this, hemoglobin combine with carbon dioxide and form carb hemoglobin. In this form, 30% of carbon dioxide transported. Okay. In this 97%, in this 30%. Okay. So second function is transport of carbon dioxide from tissues to lungs. In this, lungs to tissue. Okay. Hemoglobin combine with carbon dioxide form carb hemoglobin. In this form, 30% of carbon dioxide transported. Red blood cell contain large amount of carbonic anhydrase. Okay. This enzyme is necessary for formation of bicarbonate from water and carbon dioxide. Okay. Thus, it helps to transport carbon dioxide in form of bicarbonate from टिश्यूज टू लंग्स. सो कौन से फॉर्म में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा. सो सेकंड फंक्शन इज क्लियर. ओके. थर्ड इज बफरिंग एक्शन इन ब्लड. सो व्हाट इज बफर एक्शन? सो एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एज बफरिंग एक्शन. ओके. हेमोग्लोबिन फंक्शन एज गुड बफर. By this action, regulate hydrogen concentration, hydrogen ion concentration. So important role in acid base balance. हम acid base balance चैप्टर में डिटेल्स में देखेंगे. सो यहाँ पे देख लिया हमने बफरिंग एक्शन इन ब्लड. फोर्थ, इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन. ओके. रेड ब्लड सेल कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स. सो लाइक A एंटीजन, B एंटीजन एंड RH फैक्टर. ये तीनों ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सो कौन कैरी करता है? तो रेड ब्लड सेल कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स लाइक A एंटीजन, B एंटीजन एंड RH फैक्टर. सो नाउ विल सी वेरिएशन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो पहले फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस देखेंगे. ओके. फर्स्ट है increase in red blood cells. Okay. Known as polycythemia. So increase red blood cell count को क्या बोलते हैं हम? Polycythemia. Occurs in both physiological and pathological condition. Okay.
इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग दिस कंडीशन इज मार्जिनल एंड टेम्पररी. फिजियोलॉजिकल में कैसा होगा? टेम्पररी. ओके. अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशन. तो फर्स्ट, एज. एट बर्थ रेड ब्लड सेल काउंट इज 8 to 10. नॉर्मल कितना था? अभी हमने देखा 4 to 5.5 होता है. ओके. सो डिक्रीज विद इन 10 days आफ्टर बर्थ. हमने देखा कि टेम्पररी है, इंक्रीज टेम्पररी है. सो यहाँ पे क्या होगा? बर्थ के टाइम पे 8 to 10 होगा. फिर डिक्रीज विद इन 10 days आफ्टर बर्थ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स causing physiological jaundice in some newborn babies. ओके. जब ये ब्रेकडाउन होगा तो हमको क्या देखने मिलेगा? रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा आफ्टर 10 days, विथ इन 10 days सॉरी. तो वो क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस प्रोड्यूस करेगा. तो वो क्या होगा? टेम्पररी. ओके. इन इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन सेल काउंट इज मोर देन वैल्यू ऑफ अडल्ट. ओके. सिंपल हमने देख लिया, इन्फेंट में ज़्यादा होता है. ओके. देन सेक्स. ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल काउंट इज लेस देन दैट ऑफ द मेल्स. तो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स की यूजुअली 15 to 45 देख लेंगे, उसमें क्या होगा? तो लेस. बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स काउंट इज सिमिलर टू मेल. ओके. फिर जैसे बिफोर प्यूबर्टी यानी जब तक मेंसेस फीमेल्स में अराइव नहीं हुए, सो उससे पहले कैसा होगा? सेम, सिमिलर टू मेल. और आफ्टर मेनोपॉज. हाई एल्टीट्यूड. अब देखेंगे हाई एल्टीट्यूड में राइज होता है तो क्यों होता है? इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेन्स हैव ऑन इंक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट ऑफ मोर देन 7 million per cubic mm. So क्यों? It is due to hypoxia. What is hypoxia? So low oxygen in high altitude. Okay. Hypoxia क्या करेगा? Stimulate kidney to secrete erythropoietin. Erythropoietin क्या करेगा? फिर in turn stimulate bone marrow to produce more red blood cells. क्या हुआ? अब हाई एल्टीट्यूड पे तो वहाँ पे क्या हुआ हमको? हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया यानी लो ऑक्सीजन. ओके. हाइपोक्सिया ने क्या किया? स्टिमुलेट, इन टर्न बोन मैरो प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल्स. फोर्थ इज मस्कुलर एक्सरसाइज. जब हम जिम जा रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद टेम्पररी इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइपोक्सिया एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन. ओके. तो क्या होगा? माइल्ड हाइपोक्सिया एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन के बाद इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी. सो इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन. ओके. वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन. तो स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्प्लीन में रिलीज रेड ब्लड सेल्स. ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि हमारी बॉडी एक काउंटर एक्शन में क्या करेगी. ओके. जब एक्सरसाइज होगा तो ये सिर्फ टेम्पररी है. ओके. सो इमोशनल कंडीशन सच एज एंजाइटी सेम रिपीट होगा. इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, रिलीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स. देन इंक्रीज एनवायरमेंटल टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज इन काउंट. ओके. सिंपल. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी इंक्रीज होती है. मील्स बिकॉज ऑफ नीड फॉर मोर ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ नीड ऑफ मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सो नाउ विल सी डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट. ओके. अभी हमने क्या देखा? इंक्रीज के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. ओके. अब देखेंगे डिक्रीज के फिजियोलॉजिकल कंडीशन. सो फर्स्ट है हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर्स. ओके. एज इन डीप सी. हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा? रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज. और डीप सी में क्या होगा? डिक्रीज. एज इन डीप सी व्हेन
ऑक्सीजन टेंशन ऑफ ब्लड इज हायर, काउंट लोस. ओके. ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज. ओके. सो ड्यूरिंग स्लीप एंड इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप क्या होगा, डिक्रीज, काउंट डिक्रीज. थर्ड है प्रेगनेंसी. रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम. अब इसमें क्या होता है, ऐसे काउंट क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है. सो परसेंटेज रेड ब्लड सेल काउंट का डिक्रीज होता है. क्लियर. सो अब हम देखेंगे पैथोलॉजिक वेरिएशंस. अभी तक हमने क्या देखा था, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन. सो पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, पैथोलॉजी का मतलब एबनॉर्मल. पॉलीसाइथेमिया का मतलब हमने अभी देखा था, इंक्रीज काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल. ओके. सो एबनॉर्मल इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल काउंट. ओके. इसका मतलब पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया का. उसमें 2 टाइप्स है. फर्स्ट है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया. सो फर्स्ट हम डिटेल में देखेंगे प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, ऑल्सो नोन एज पॉलीसाइथेमिया वेरा. ओके. characterized by persistent increase in count above 14 million per cubic mm of blood. Okay. As always associated with increased WBC. किसके साथ associated है? So increased WBC above 24,000 per cubic mm of blood occurs in myeloproliferative disorders like malignancy of red blood मैरो. इसका मतलब क्या होता है, कैंसर. कैंसर में 2 टाइप्स के हो सकते हैं. ओके. बिनाइन और मैलिग्नेंट. यहाँ पे क्या है, मैलिग्नेंट. सिंपल. अब देखेंगे सेकेंडरी. सो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया. सो सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी टू सम ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन. ऑलरेडी पैथोलॉजिकल कंडीशन बॉडी में प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, काउंट इंक्रीज हो रहा है. सो फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एम्फाइसीमा. सेकंड है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज. थर्ड है एयरजास डिसीज. फोर्थ है क्रोनिक कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग. फिफ्थ है पॉइजनिंग बाय केमिकल्स लाइक फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. सिक्स्थ है रिपीटेड माइल्ड हेमरेज. अब पैथोलॉजिकल में हमने पहले क्या देखा, इंक्रीज काउंट में 2 टाइप. ओके. प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, सेकेंडरी. अब जब डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनीमिया. ओके. एनीमिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन रेड ब्लड काउंट. ठीक है. और इंक्रीज का मतलब क्या होता था, पॉलीसाइथेमिया. अब हम देखेंगे वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ओके. अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन वीनस ब्लड इज स्लाइटली लार्जर, ओके, देन आर्टीरियल. अब हम पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखेंगे. सो फर्स्ट है माइक्रोसाइट. माइक्रो का मतलब क्या, स्मॉल, स्मॉलर सेल्स. साइट का मतलब सेल्स. सो माइक्रोसाइट, स्मॉलर सेल्स प्रेजेंट इन फर्स्ट किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड. तो स्मॉलर किसमें होंगे, तो फर्स्ट आयरन डेफिशिएंसी, सेकंड प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग, इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड. अब मैक्रोसाइट्स, मैक्रो यानी लार्ज, साइट्स यानी सेल. सो किसमें होंगे वो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड. इसमें क्या था, इंक्रीज में क्या हो जाता है, स्मॉल, और डिक्रीज में क्या, लार्ज. ओके. थर्ड है एनिसोसाइट. एनिसोसाइट मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइज के सेल्स होंगे. ठीक है. तो वो किस में देखने मिलेंगे हमको, पर्नीशियस एनीमिया. क्लियर. ओके. अब हम देखेंगे वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल. तो फर्स्ट है उसमें क्रीनेशन. क्रीनेशन यानी श्रिंकेज एज इन हाइपरटोनिक कंडीशन. हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा, सेल, रेड ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रीनेशन. सेकंड है स्फेरोसाइटोसिस. उसमें क्या होगा,
ऐसे सेल फूल जाएगा, तो वो कौन सी कंडीशन में होगा? हाइपोटोनिक कंडीशन। ग्लोब्यूलर फॉर्म, तो कैसे? ऐसे फूल जाएगा, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ऐसे राउंड हो जाए तो ग्लोब्यूलर फॉर्म। ओके। थर्ड है एलिप्टोसाइटोसिस, तो क्लियर नाम से ही पता चलता है, तो एलिप्टिकल शेप इन सर्टेन एनीमियास। फोर्थ है सिकल सेल, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिसेंटिक यानी ऐसे हाफ मून जैसा। ओके, इन सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। पोइक्लोसाइटोसिस, अनयूजुअल शेप्स ड्यू टू डिफॉर्म सेल मेम्ब्रेन, शेप विल बी फ्लास्क, हैमर और एनी अदर अनयूजुअल शेप। इसमें डिसाइडेड नहीं होगा कौन सा शेप होगा। ओके, तो अनयूजुअल शेप्स। ओके, क्लियर। सो अब हम देखेंगे वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल। सो फर्स्ट है पंचटेक बेसोफिलिज्म। इसमें क्या होता है? बेसोफिलिक मटेरियल ऐसे डॉट 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 अपीयरेंस में हमको रेड ब्लड सेल में दिखाई देता है। ओके, स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय प्रेजेंस ऑफ डॉट्स ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल, पोरफायरिन। ये कहाँ से आता है? तो अभी हमने देखा था डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? तो 3 में था, तो लास्ट में क्या था? पोरफायरिन। ओके, अकर्स इन कंडीशन लाइक लेड पॉइजनिंग। ओके, रिंग इन रेड ब्लड सेल्स, और उसको और क्या बोलेंगे हम? ग्लोबलेट रिंग्स। ओके, सो रिंग और ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल अपीयर इन पेरीफेरी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लोबलेट रिंग्स। ओके, होवेल जॉली बॉडीज। अब इसमें क्या होगा? हमने पहले देखा था कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, तो इसमें हमको क्या देखने वाला? इन सम टाइप ऑफ एनीमिया सम न्यूक्लियर फ्रेगमेंट आर प्रेजेंट इन एक्टोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? होवेल जॉली बॉडीज। क्लियर। सो आज का हमारा रेड ब्लड सेल का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हमने सारे प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, वेरिएशन डिटेल में देखे। इफ़ यू like the video, please like and subscribe, and thanks for watching.